मैं शिवानी न्यूज़ मोमेंट से आपका स्वागत करती हूँ न्यूज़ मोमेंट हिंदी में। आज के खबरों की कुछ सुर्खियाँ। सफलता सीमित, ऊंचाई का सफल समापन। देवघर बागा सेक्शन में सबवे आसनसोल डिवीजन के अंतर्गत योगी महाकुंभ भगदड़ की जांच के आदेश। 25 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश। एसबीआई ने लिया ऋण वसूली के लिए फैक्ट्री पर कब्जा। आसनसोल बीजेपी विधायक और पश्चिम बंगाल भाजपा की राज्य सचिव अग्निमित्रा पाल ने राज्य में बढ़ते अपराध और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर तृणमूल सरकार पर तीखा हमला किया। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। Start shipping with e-com delivery. For PIN code franchise courier contact. Please contact 97740301759319088857 to 7585971093. एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुरुलिया जिला पुलिस और आबकारी विभाग के अधिकारियों ने पुरुलिया जिले के नितुराल ब्लॉक में सरवारदी मोड़ के पास एक पेट्रोल पंप के सामने एक संपादक विकास प्रसाद की रिपोर्ट के अनुसार जिला पुलिस ने वहां छापा मारा और कई लाख रुपए की बोतलें बरामद की। मामले में 4 महिलाओं, 5 पुरुष और 1 नाबालिग लोग तत्काल गिरफ्तार किया गया। उस फैक्ट्री से करीबन 75,000 बोतलें बरामद की गई। बुधवार को उन्हें रघुनाथपुर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 5 लोगों को पुलिस हिरासत में ले लिया गया, जबकि नाबालिग को पुरुलिया आनंद मठ गृह भेज दिया गया। वही बताया जा रहा है कि गिरफ्तार किए गए लोग जमुर्ला और बिहार के रहने वाले हैं। शराब में मिले स्टिकरों में पंजाब और बिहार के भी स्टिकर है। इस संबंध में बुधवार को प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जिला पुलिस अधीक्षक अभिजीत बनर्जी ने कहा, গতকাল আমরা সোর্স ইনফরমেশন পাই যে নিতুরিয়া থানার সরবরি মোড়ের পাশে একটা পেট্রোল পাম্পের পাশে একটা ঘেরা জায়গা আছে। সেই জায়গাতে স্পুরিয়াস অ্যালকোহল এটা ম্যানুফ্যাকচার হচ্ছে, প্যাকেজিং হচ্ছে এবং তার স্মাগলিং হচ্ছে। সেই খবরটাকে আমরা ওয়ার্কআউট করে আমরা প্রায় 75,000 বোতল বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ফরেন লিকার আমরা সিজ করি, যেগুলো অ্যাকচুয়ালি ওই ইলিগালি ম্যানুফ্যাকচার করা হচ্ছিল, স্পুরিয়াস ড্রাগ বা স্পুরিয়াস অ্যালকোহল। তো সেগুলোকে আমরা সিজ করি। আমরা মোট 9 জন আসামিকে ওখান থেকে অ্যারেস্ট করি। 9 জনকে যাদের পাওয়া গেছিলো তাদের মধ্যে তাদেরকে আমরা আজকে ফরওয়ার্ড করেছি। এখানে কিছু চাইল্ডকেও লেবার হিসাবে কাজ করানো হচ্ছিল, সেটাও আমরা ওখানে তাদেরকেও সেখান থেকে উদ্ধার করেছি। আমরা আজকে তদন্তের স্বার্থে 5 জনকে পুলিশ রিমান্ডের প্রেয়ার দিয়ে পাঠিয়েছি। ইনভেস্টিগেশন চলছে। এই যে যারা গ্রেপ্তার হয়েছে তারা তাদের বাড়ি কোথায়? তারা বাইরের বাসিন্দা, মেনলি জামতারা এবং বিহারের ওই দিকের বাসিন্দা আছে। আমরা মানে যেটা জানতে পেরেছি, এই যে সিলগুলো ছিল, লেভেলিংগুলো যেগুলো ছিল
মানে বোতলে যে লেভেল ছিল তাতে লেখা ছিল সেল ফর পাঞ্জাব অ্যান্ড সেল ফর বিহার। তো এইরকম আমরা পেয়েছি, এগুলো সবই তার মানে আমরা একটা অ্যাজিউম করা যায় যে এইসব জায়গাতে এগুলোকে পাচার করার ব্যাপার ছিল। আমরা একদম ইনিশিয়াল ফেজে আছি, আমরা এক্সপার্টদের সঙ্গে কথা বলেছি, এক্সাইজ ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে কথা হচ্ছে, তাদেরও আমরা যে ওপিনিয়ন সেটা নিয়েছি এবং আমরা এফএসএলেরও যে এফএসএলের এক্সপার্ট ওপিনিয়ন সেটার জন্য আমরা এক্সিকিউটগুলো সেখানে পাঠাচ্ছি। এই ঘটনায় এফএসএলও আসবে এই জায়গাটাকে পরীক্ষা করে। এই ঘটনায় মানে মূল পাণ্ডাকে এটার কিছু আমি আবার বললাম আমরা ইনভেস্টিগেশনের একদম ইনিশিয়াল ফেজে আছি। আমরা যে সিজারটা করেছি, অ্যারেস্টগুলো করেছি, আমরা যাদের অ্যারেস্ট করেছি তাদেরকে রিমান্ডে নিচ্ছি। আমরা পরবর্তীকালে এর পেছনে যদি যারা আছে তাদেরকেও আমরা আইডেন্টিফাই করবো এবং তাদেরকেও আইনের আওতায় নিয়ে আসবো। এই কারখানা কতদিন ধরে চলছিল এখানে? সেটা তো আমাদেরকে ভেরিফাই করে করতে হবে, তবে কিছুদিন ধরে চলছিল, তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি। মালিক কাউকে কি পাওয়া গেছে এখানে? আমি আপনাদের বললাম যে আমরা 9 জনকে অ্যারেস্ট করেছি, তাদেরকে পুলিশ রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। তাদের মধ্যে 5 জনকে পুরো ব্যাপারটা কে মাস্টার মাইন্ড, কে চালাচ্ছিল, কে লেবার, কে মিডিয়েটার, প্রত্যেকের রোল আমরা ভেরিফাই করব এবং যারা যারা এতে ইনভলভ আছে তাদের প্রত্যেকে অ্যারেস্ট করব। কত টাকার এটা মোটামুটি হবে? দেখুন, এই যে টাকার ব্যাপারটা, এরা তো পুরোটাই এরা নিজেদের মতো দাম লিখে রেখেছে মার্কেট প্রাইস অনুযায়ী, কিন্তু মার্কেট প্রাইসে যে জিনিসটার মূল্য দেওয়া আছে সেটা তো এই জিনিসটা তো সেটা নয়। এটা অ্যালকোহল যে বাবু রয়্যালস থেকে যে অ্যালকোহলের দাম হয়, মানে ফরেন লিকারের যে দাম হয় সেই দাম ওখানে লেভেল করা আছে, বাট এভাবে তো বাজার মূল্য আমরা বলতে পারবো না। মূলত ওইখানেই তৈরি হতো, ওখানেই তৈরি করছে। ঠিক আছে। कोल इंडिया भारत के शीर्ष 50 सर्वश्रेष्ठ कार्यस्थलों में लिमिटेड को भारत के शीर्ष 50 सर्वश्रेष्ठ कार्यस्थलों में शामिल होने का गौरव प्राप्त है। कोल इंडिया लिमिटेड को यह सम्मान प्रसिद्ध संगठन ग्रेट प्लेस टू वर्क द्वारा 2025 में विनिर्माण क्षेत्र के 347 संगठनों की कार्यप्रणाली के व्यापक सर्वेक्षण के बाद दिया गया है। उल्लेखनीय है कि कोल इंडिया को समावेशी और टिकाऊ संगठन बनाने की प्रतिबद्धता के लिए पहले ही कार्य करने के लिए बेहतरीन स्थान के रूप में मान्यता दी जा चुकी है। कोल इंडिया भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के अधीन एक महारत्न कंपनी है। विश्व की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी के रूप में कोल इंडिया भारत की 80% से अधिक घरेलू कोयला मांग को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सफलता सीमित ऊंचाई का सफल समापन देवघर बाका सेक्शन में सबवे आसनसोल डिवीजन के अंतर्गत देवघर बाका सेक्शन में लिमिटेड हेल्थ सबवे नंबर 2 का निर्माण हाल ही में सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। यह उपलब्धि यात्रियों और आम जनता की सुरक्षा और सुविधा को बढ़ाने की दिशा में एक और कदम है। साथ ही इस क्षेत्र में रेलवे परिचालन को सुचारू रूप में सुनिश्चित करना है। इस परियोजना में मौजूदा लेवल क्रॉसिंग को आधुनिक लिमिटेड हेल्थ सबवे से बदलने के लिए सावधानतापूर्वक कार्य करना शामिल था। नवनिर्मित LHS नंबर 2 लेवल क्रॉसिंग पर गेट बंद होने के कारण होने वाली देरी को समाप्त करेगा, जिससे सड़क उपयोगकर्ता के लिए निर्बाध यात्रा निश्चित होगी। इसके अतिरिक्त ये दुर्घटनाओं के जोखिम को काफी हद तक कम करेगा, जिससे यात्रियों की सुरक्षा बढ़ेगी। निर्माण सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करते हुए किया गया तथा रेल परिचालन में न्यूनतम व्यवधान उत्पन्न किया गया। कुशल इंजीनियरों और श्रमिकों की एक टीम ने इस महत्वपूर्ण बुनियादी परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए अथक परिश्रम किया। LHS को हल्के और मध्यम वाहनों के अवगमन को समायोजित करने के लिए डिजाइन किया गया, जबकि मानसून के मौसम में जल भराव को रोकने के लिए कुशल जल निकासी निश्चित की गई है। ये विकास परिचालन और सुरक्षा चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करते हुए रेलवे बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने और सुरक्षा मानकों में सुधार करने के लिए आसनसोल डिवीजन के चल रहे प्रयासों का हिस्सा है। HLS नंबर 2 का सफलतापूर्वक पूरा होना आसनसोल डिवीजन की इंजीनियरिंग, संचालन और सुरक्षा टीमों के सहयोगात्मक प्रयासों को दर्शाता है।
जिसे यात्रियों, स्थानीय निवासियों और सड़क उपयोगकर्ता को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करने और पूरे क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने में लाभ मिलने की उम्मीद है। नियमित महाकुंभ मेले के लिए ट्रेनों का परिचालन। महाकुंभ मेले के लिए निम्नलिखित ट्रेनों की आवाजाही को विनियमित करने का निर्णय लिया गया है। रद्दीकरण 12307 हावड़ा जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस SEO 4/2/2025 12308 जोधपुर हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस JCO 6/2/2025 22307 हावड़ा बीकानेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस JCO 30/1/2025 22308 बीकानेर हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस JCO 1/2/2025। योगी महाकुंभ भगदड़ की जांच के आदेश 25 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को महाकुंभ में भगदड़ के कारणों का पता लगाने के लिए न्यायिक जांच के आदेश दिए। भगदड़ में 30 लोगों की मौत हो गई और 60 घायल हो गए। योगी आदित्यनाथ ने जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को 25 से 25 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की। 3 सदस्यीय जांच पैनल की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायाधीश हर्ष कुमार करेंगे और इसमें पूर्व DGP VK गुप्ता और सेवानिवृत्त IS अधिकारी DK सिंह भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे मामले की अलग से पुलिस जांच भी कराई जाएगी। भावुक होते हुए आदित्यनाथ ने कहा, यह जानना महत्वपूर्ण है कि इस तरह की त्रासदी कैसे घटी। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव और DGP इस घटना की गहन जांच के लिए गुरुवार को महाकुंभ का दौरा करेंगे, लेकिन विपक्षी नेता ने दावा किया कि मृतकों और घायलों की संख्या बताई गई संख्या से कहीं अधिक है, क्योंकि 70 एम्बुलेंस को शवों और घायलों को ले जाने देखा गया। JDU से 2 बिहार में कांग्रेस में शामिल। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही राजनीतिक दलों में बदलाव का सिलसिला तेज हो गया है, जिससे राज्य का राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। नेताओं ने अपनी पसंद की पार्टियों का प्रतिनिधित्व करते हुए चुनाव लड़ने की उम्मीद में पाला बदलना शुरू कर दिया है। पार्टियां उनकी जातिगत पहचान और जीतने की संभावना को भूनने के लिए उन्हें खुले दिल से गले लगाती है। इसके अलावा अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष मनोज प्रजापति ने अन्य नेताओं के साथ मिलकर पार्टी का दामन थामा। अनवर पसमानदा समुदाय के प्रभावशीलता नेता है। पिछड़े मुस्लिम वोटों में पासमानदा सबसे बड़ी हिस्सेदारी रखते हैं। वे 2 बार राज्यसभा सदस्य और अखिल भारतीय पसमानदा मुस्लिम समाज के अध्यक्ष हैं। राजनीतिक विश्लेषण प्रमोद कुमार कहते हैं, कांग्रेस अनवर और दशरथ मांझी के जरिए पिछड़े मुसलमानों और दलितों के बीच अपना समर्थन आधार मजबूत करने की कोशिश कर रही है। शनिवार को राजद की प्रदेश उपाध्यक्ष शोभा कुशवाहा बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ केंद्रीय मंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में शामिल हो गई। पार्टी को उम्मीद है कि उनके आने से लव कुश कुर्मिल कोयला वोट बैंक मजबूत होगा। शोभा को पार्टी में ऐसे समय शामिल किया गया है जब RJD कुशवाहा वोट बैंक में गेंद लगाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में उसने 3 कुशवाहा उम्मीदवार उतारते थे। उसने औरंगाबाद के चुनाव जीतने वाले अभय कुशवाहा को लोकसभा में अपना संसदीय दल का नेता नियुक्त किया। शोभा बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य भी थी। इस अवसर पर भागलपुर से अनुक जाति बिहार में IBC के रूप में सूचीबद्ध के एक प्रमुख नेता अजय राल भी JDU में शामिल हुई। JDU ने दावा किया कि उन्होंने पूर्व चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर की जन
स्वराज पार्टी का समर्थन किया। हाल ही में जेडीयू के पूर्व उपाध्यक्ष मंगनी लाल मंडल को पार्टी नेता तेजस्वी यादव ने आरआईपी में शामिल किया। धानु जाति बिहार में ईबीसी के रूप में प्रतिष्ठित के एक प्रमुख नेता अजय राल भी इस अवसर पर जदयू में शामिल हुए। जदयू ने दावा किया कि उन्होंने पूर्व चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी का समर्थन किया। हाल ही में जेडीयू के पूर्व उपाध्यक्ष मंगनी लाल मंडल को पार्टी नेता तेजस्वी यादव ने आरजेडी में शामिल कराया। मंडल के सहारे तेजस्वी ईबीसी वोट बैंक को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में सत्ता पाने और उसे बनाए रखने के लिए ईबीसी का समर्थन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। पिछले 20 सालों से ये नीतीश का मुख्य वोट बैंक रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने मल्लाह वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए मुकेश साहनी को गठबंधन में शामिल किया। उत्तर बिहार के मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर में मंडल का प्रभाव माना जाता है। वे झंझारपुर से विधायक और सांसद हार चुके हैं। इस बार राजद ने पूर्व केंद्रीय मंत्री कर्पूरी ठाकुर की जयंती शुक्रवार को जिले में फुलपरास में मनाई, जिसे ठाकुर का कर्मभूमि माना जाता है। ठाकुर भी अति पिछड़ा वर्ग से आते थे। बोकारो से कोलकाता जा रही बस में 200 तोते और 4 गिरफ्तार। तस्करी से पहले बंगाल झारखंड अंतर्राज्यीय यात्री बस से 200 पहाड़ी तोते बरामद किए गए। दुर्गापुर और बर्दवान जिले वन विभाग ने मंगलवार रात दुर्गापुर में छापेमारी की। बस के ड्राइवर और कंडक्टर और 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार लोगों में पूर्वी बर्दवान के दुबरा जधी के शेख इस्लाम और शेख असलम और झारखंड के शिवशंकर चौधरी और हिंद कुमार पांडे शामिल है। दुर्गापुर के कांसका में आसकोपा टोल प्लाजा के पास एक अंतरराज्यीय बस में पक्षियों की तस्करी की जा रही थी। इसके बाद वन विभाग की टीम ने झारखंड के बोकारो से कोलकाता जा रहे एक यात्री बस को रोका और जांच की। बस की तलाशी ली गई तो कई पिंजरों से करीब 200 तोते बरामद हुए। एसबीआई ने लिया ऋण वसूली के लिए फैक्ट्री पर कब्जा। एसबीआई बैंक ने आसनसोल के कुल्टी के निमतल्ला इलाके में एक बंद फैक्ट्री को सील कर दिया। बुधवार को इस फैक्ट्री को सील कर बैंक के कोलकाता कार्यालय ने अपने कब्जे में ले लिया। फैक्ट्री को लीज पर लेने वाले वी जयलाल ने कहा कि फिलहाल फैक्ट्री बंद है। फैक्ट्री में मरम्मत का काम चल रहा था। आज बैंक के कर्मचारी अचानक आए और फैक्ट्री को सील कर दिया। उसने समय मांगा, लेकिन बैंक अधिकारियों ने कोई समय नहीं दिया। उन्होंने कहा कि वे वर्ष 2005 से ये कारोबार कर रहे हैं। उन्होंने बैंक के 4 अधिकारियों को आवेदन दिया था, लेकिन बैंक अधिकारियों ने उनकी एक नहीं सुनी। कल्याणेश्वर मेटल प्राइवेट लिमिटेड ने बैंक की ऋण लिया था। उन्होंने कहा कि वे इस मामले में हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। आसनसोल बीजेपी विधायक और पश्चिम बंगाल भाजपा की राज्य सचिव अग्निमित्रा पाल ने राज्य में बढ़ते अपराध और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर तृणमूल सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने पुलिस प्रशासन पर निष्क्रियता और खुफिया तंग की विफलता का आरोप लगाते हुए कहा कि अपराधियों के हौसले बुलंद है, जबकि आम जनता असुरक्षा के माहौल में जी रही है। तृणमूल सरकार के अगली मंगाला नारे पर कटाक्ष करते हुए अग्निमित्रा पाल ने कहा कि राज्य अपराध, गोलीबारी और हिंसा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार और पुलिस अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो भाजपा इस मुद्दे पर सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन करेगी। विधायक ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस को तृणमूल नेताओं की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है, जबकि आम जनता की सुरक्षा
भगवान भरोसे है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस गंभीर स्थिति का तत्काल संज्ञान लेना चाहिए और कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए कदम उठाने चाहिए। ईसीएल सीएमडी एवं कार्मिक निर्देशक ने केंद्रीय अस्पताल कल्ला का किया निरीक्षण। सीएमडी सतीश झा ने कार्यभार संभालने के बाद अपने कर्मचारियों को स्वास्थ्य सुविधा सहित सभी बुनियादी सुविधा प्रदान करने के लिए कृत संकल्पित है। स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लेने के लिए सीएमडी ने कार्मिक निदेशक गुंजन कुमार सिन्हा के साथ केंद्रीय अस्पताल कल्ला का दौरा किया। कल्ला पहुंचने पर सीएमडी और कार्मिक निदेशक का सीएमओ प्रभारी एडमिन डॉक्टर फल्याज अहमद, एमएस एडमिन डॉक्टर अनुरंजिता रॉय, अस्पताल के अन्य डॉक्टरों और अधिकारियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। यात्रा के दौरान सीएमडी और कार्मिक निर्देशक ने इंडोर वार्ड, स्टोर, पैथोलॉजी का किया दौरा, लैब, बाह्यरोगी विभाग, ओपीडी, फार्मेसी, ऑपरेशन थिएटर और प्रशासनिक कार्यालय भवन की समीक्षा करते हुए सीएमडी और कार्मिक निर्देशक ने अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं को बढ़ाने के निर्देश दिए।